Hello students, welcome to my channel Hindi Learning. Today we will do the question answers of the chapter अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, and the writer is Nida Fazli. बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे क्यों ढकेल रहे थे? Why the big builders were pushing the ocean back? ढकेलना means push. बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे ढकेलकर उस जमीन पर भी इमारतें बनाना चाहते थे ताकि उन्हें ऊंचे दामों पर बेचा जा सके. So they wanted to construct the buildings on that land so that they can sell that on high prices. ऊंचे दामों means high prices. लेखक का घर किस शहर में था? The writer's house was in which city? लेखक का बचपन का घर ग्वालियर में था. अब वे मुंबई के वर्सोवा में रहते हैं. His childhood house was in the city Gwalior. Now he stays in Versova, Mumbai. Versova is the area. जीवन कैसे घरों में सिमटने लगा है? The life is shrinking in which type of houses? पहले आंगन दालान वाले बड़े बड़े घर हुआ करते थे. Earlier the houses were big with courtyards and hallways. लेकिन अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है. But now the life is shrinking in the small houses. The houses like boxes. डिब्बे means boxes. So now we live in flat. And the poet is comparing that with box. कबूतर परेशानी में इधर उधर क्यों फड़फड़ा रहे थे? Why the pigeons were flapping from here and there in distress? परेशानी, कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे क्योंकि उनके दोनों अंडे नष्ट हो गए थे. उनके the pigeons both the eggs were destroyed. एक बिल्ली ने उचक्कर तोड़ दिया था. One the cat jumped and due to that the egg was broken. दूसरा अंडा लेखक की माँ के हाथों टूट गया था. And the another egg, so it slipped from the mother's hand and it also broke. अरब में लश्कर को नूह के नाम से क्यों याद करते हैं? इन अरब why the people they remember लश्कर as the name नूह. बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है. इन बाइबल एंड अदर होली बुक्स they have described about the prophet named Nuh. उनका असली नाम लश्कर था. His real name was लश्कर. लेकिन अरब ने भी उन्हें नूह के लक़ब से याद किया. But Arab also, they also remembered him with the title Nuh. लेखक की माँ किस समय पेड़ों के पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थी और क्यों? The author's mother. At what time she was saying that don't pluck the leaves from the trees and why? तोड़ना means pluck. लेखक की माँ उन्हें सूरज ढलने के बाद पेड़ों से पत्ते तोड़ने से रोकती थी. So the author's mother, she will stop them. After sunset, you should not pluck the leaf from the trees. सूरज ढलना means sunset. उनका कहना था, she says कि पेड़ रोएंगे, the trees will cry. दिया पत्ती के वक्त फूल तोड़ने से वे मना करती थी. In the evening prayer time, she will say that don't pluck the flowers. क्योंकि उनके विचार में ऐसा करने से फूल बददुआ देते हैं. Because she thought that if we'll do like this then the flower will curse us. बददुआ means curse. प्रकृति में आए असंतुलन को के क्या परिणाम हुए? प्रकृति means nature, असंतुलन is imbalance, परिणाम is result. प्रकृति में असंतुलन से अब गर्मी में ज्यादा गर्मी. इट्स मोर हॉट इन समर. बेवक्त की बरसातें, अनटाइमली रेन, जलजले, अर्थक्वेक, सैलाब, फ्लड, तूफान, स्टॉर्म आने लगे. नित नए रोग. एवरी नाउ एंड देन न्यू डिजीजेस. सो इसी असंतुलन के परिणाम है. दिस ऑल आर द रिजल्ट्स ऑफ दिस इम्बैलेंस. प्रकृति का प्रकोप मानव द्वारा फैलाए प्रदूषण और प्रकृति असंतुलन के कारण ही इतना विनाशकारी होता है. So the nature's this anger, it is so much destructive, विनाशकारी, because of the human have spread all the pollution, प्रदूषण फैलाए और हमारे नेचर को इम्बैलेंस किया है. प्राकृतिक असंतुलन, because of the imbalance in the nature. So this all are the results. Rain, earthquake, flood, storm. लेखक की माँ ने पूरे दिन का रोजा क्यों रखा? Why the author's mother
kept the fast for the whole day. रोजा means fast. लेखक के घर में कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बनाया था. In author's house, one pair of pigeon had made their nest. घोंसला means nest. और घर में 2 अंडे दिए थे and they gave 2 eggs on that nest. बिल्ली ने उचक्कर एक अंडा तोड़ दिया. So one egg was broken by the cat. He jumped and the egg broke. इससे लेखक की माँ दुखी हो गई. The mother became very sad. उन्होंने दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की. She was trying to save the another egg. इस प्रयास में, in this effort, दूसरा अंडा उनके हाथों से छूटकर गिर गया. Another egg also. That egg also slipped from her hand and that also broke. कबूतर परेशान होकर इधर उधर फड़फड़ाने लगे. So the pigeons were in distress and they were flying from here and there. यह देखकर लेखक की माँ दुख और पश्चाताप से भर गई. By seeing this, the author's mother was very sad and she was having regret. पश्चाताप means regret. और आंखों से आंसू बहने लगे. And the tears were falling from the eyes. अपने गुनाह को खुदा से मुआफ कराने के लिए उन्होंने पूरे दिन रोजा रखा. So the whole day he was fasting so that the God should forgive his sin. गुनाह means sin. और बार बार नमाज पढ़कर मुआफी की दुआ मांगती रही. And again and again she was doing the prayer. She was doing namaz and trying to forgive her sin. माफ means sorry. दुआ मांगती रही, praying. लेखक ने ग्वालियर से बंबई तक किन बदलाव को महसूस किया? What all differences the लेखक observed or felt between Gwalior to Mumbai? बदलाव means changes. We have to write on the basis of the chapter. पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए. लेखक का बचपन ग्वालियर में गुजरा था. The author's childhood was spent in Gwalior. वहां अपनी माँ के साथ रहते हुए उन्होंने पेड़ पौधे पशु पक्षियों के प्रति प्रेम और आदर सीखा था. So when in Gwalior he was staying with his mother, that time he learned the love and respect for the plants, trees, birds and animals. आदर means respect. प्रति towards. अब वे मुंबई में वर्सोवा में रहते हैं. Now he is residing in Versova in Mumbai. यहाँ बड़े शहर का जीवन है. So it's a life of a big city. जो ग्वालियर से भिन्न है, which is different from ग्वालियर. वर्सोवा में जब लेखक आए तो वह समुद्र के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई थी. When he came to वर्सोवा, so ओशन बैंक के उधर एक बिग सोसाइटी डेवलप हो गई थी. बस्ती में सोसाइटी. जबकि पहले अर्लियर वहां दूर दूर तक जंगल थे. इट वॉज जंगल टिल फार अवे. पेड़ थे, ट्रीज थे, कई प्रकार के पक्षी और जंगली जानवर आदि थे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स वेर देयर. लोगों की बस्ती ने पशु पक्षियों से उनका घर छीन लिया. तो पब्लिक, हम पीपल, हम ह्यूमंस की सोसाइटी ने बर्ड्स और एनिमल्स से उनके हाउसेस स्नैच कर लिए, छीन लिए. अब वे या तो शहर छोड़ गए, इधर दे लेफ्ट द सिटी, या आसपास के स्थानों में बस गए, और दे आर जस्ट residing in the nearby places, settled in the nearby places. इस प्रकार ग्वालियर से मुंबई तक के जीवन में लेखक ने बहुत बदलाव देखे हैं. So the author saw many changes till from ग्वालियर till मुंबई. डेरा डालने से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए. डेरा डालना इस वन इडियम, मुहावरा है, which means अस्थाई रूप से रहना. When you are staying somewhere is temporary. अस्थाई means temporary shelter. डेरा डालने का अर्थ है बस जाना, घर बसा लेना. ये अस्थाई भी हो सकता है. मीन्स व्हेन यू सेटल समवेयर, बट इट कैन बी टेम्पररी. लेखक ने बताया कि जहां दूर तक घना जंगल था, सो अर्लियर इट वाज डेंस फॉरेस्ट टिल फार अवे, अब वहां मनुष्यों की बस्ती बन गई है. नाउ ह्यूमंस की सोसाइटी डेवलप हो गई है. बस्ती, सोसाइटी. इसके कारण कई पशु पक्षी वह स्थान छोड़ गए. सो मेनी बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव टू लेफ्ट, they have to leave from there. परंतु कुछ पक्षियों आदि ने वहीं आसपास अपने घर बना लिए. But few were staying nearby only in that area itself. एक कबूतर के जोड़े ने तो लेखक के घर के रोशनदान में ही अपना घोंसला बना लिया. One pair of pigeon, they made their nest on the ventilation in the author house. रोशनदान means ventilation. अर्थात डेरा डाल लिया, which means they made their temporary shelter.
शेख अयाज के पिता अपने बाजू पर काला चोटा रेंगता देख भोजन छोड़कर क्यों उठ खड़े हुए? शेख अयाज फादर, when he saw one black ant scrolling on the hand, why he left the food? Why he get up? शेख अयाज के पिता कुएं से नहा कर लौटे थे. He returned after taking a bath from the well. कुआं means well. भोजन के लिए बैठते ही उन्होंने एक काले चोटे को अपनी बाजू पर रेंगते देखा. As he sat for the food, he saw a black ant scrolling on the hand. वे समझ गए, he understood, कि यह चोटा कुएं से उनके साथ आ गया है. That the ant came from the well with him. उन्हें लगा जैसे उन्होंने उस छोटे को उसके घर से अलग कर दिया है. He felt as if he has separated that ant from his home. उसको बेघर होमलेस कर दिया है. वे उसे वापस कुएं पर छोड़ आने के लिए उठ खड़े हुए. So he stand so that he can keep the ant again to the well. Now the 50 to 60 questions. So the first question is, बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव हुआ? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन का नेचर पर क्या इम्पैक्ट हुआ? पर्यावरण, नेचर, प्रभाव, इम्पैक्ट. बढ़ती हुई आबादी, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. बढ़ती आबादी ही आज हमारे सभी दुखों का कारण कही जा सकती है. वी कैन से that all the problems, so the reason is the increasing population. इन आबादियों को बसाने के लिए जमीन कम पड़ रही है, because we are now having less land for this population. जमीन means land. तो समुद्र को पीछे सरकाया जा रहा है. So what we are doing? We are pushing the ocean. जंगल के पेड़ों को अंधाधुंध काटा जा रहा है. Blindly we are cutting the trees of the jungle. मनुष्य ही आज दुनिया में फैले प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है. Humans are responsible for the pollution. इस प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया. एंड ड्यू टू दिस पॉल्यूशन द बर्ड्स आर रनिंग अवे फ्रॉम द सोसाइटी. वन्य पशुओं से उनके जंगल भी छीन लिए हैं हमने. एनिमल्स से उनके जंगल्स भी स्नैच कर लिए हैं. बारूदों की विनाश लीला. बारूद मीन्स एक्सप्लोजन, विनाश मतलब डिस्ट्रक्शन. तो ये सब ने भी वातावरण, हमारे एनवायरनमेंट को ट्रबल करना स्टार्ट किया है, सताना शुरू किया है. मौसम में बदलाव, क्लाइमेट चेंज, बाढ़, भूकंप, तूफान, फ्लड, अर्थक्वेक, स्टॉर्म आदि एक्सेट्रा भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का कारण है. ऑल दिस आर द रीजंस फॉर द हार्म टुवर्ड्स द नेचर. दिन प्रतिदिन नए रोग, एवरी नाउ एंड द न्यू डिजीजेस. पर्यावरण में हुए असंतुलन के कारण, ड्यू टू द इम्बैलेंस इन द नेचर, जनजीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है. लाइफ को बहुत डीप इम्पैक्ट हुआ है. लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली क्यों लगवानी पड़ी? वाई ऑथर वाइफ हैज टू पुट द नेट ऑन द विंडो. जाली मीन्स नेट, खिड़की इज विंडो. लेखक के घर में कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था. ऑथर के हाउस में एक वन पेयर ऑफ पिजन, दे हैड मेड देयर नेस्ट. अपने बच्चे को दाना खिलाने और पिलाने के लिए वे कबूतर बार बार आने जाने लगे. सो अगेन एंड अगेन दे आर कमिंग एंड गोइंग बिकॉज दे हैड टू फीड देयर बेबीज. इससे घर में रहने वालों को बड़ी परेशानी होने लगी. सो नाउ द पीपल हु वर स्टेइंग इन द होम, दे वर हैविंग प्रॉब्लम. ये कभी कोई चीज गिराकर तोड़ भी देते. समटाइम दे विल, ड्यू टू व्हेन दे आर कमिंग और गोइंग, सम द थिंग्स विल फेल डाउन, इट विल ब्रेक. लेखक की लाइब्रेरी में रखी पुस्तकों को भी गंदा कर देते. द बुक्स इन द लाइब्रेरी, द पेजेस विल मेक दैट बुक डर्टी. इन्हीं सब कारणों से परेशान होकर लेखक की पत्नी ने खिड़की में जाली लगा दी. बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजंस the author's wife put the net on the window so that they cannot come. समुद्र के गुस्से की क्या वजह थी? What was the reason for the anger of the ocean? उसने अपना गुस्सा कैसे निकाला? How he showed his anger. बंबई शहर के बड़े बड़े बिल्डरों ने समुद्र से उसकी जमीन छीन ली. So the big big builders snatched the land from the ocean. समुद्र सिमटने लगा. It shrink. लेकिन एक दिन उसकी सहन शक्ति समाप्त हो गई. बट वन डे हिज टॉलरेंस एंडेड. सहन शक्ति, टॉलरेंस. अब समुद्र का गुस्सा देखने लायक था. नाउ वी हैव टू सी द एंगर ऑफ द ओशन. लेखक कहते हैं कि जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है. द ऑथर से दैट वन हु इज वेरी बिग, ही विल नॉट गेट एंग्री वेरी ऑफन. लेकिन जब आता है
तो रोकना मुश्किल हो जाता है, बट व्हेन ही बिकम्स एंग्री इट इज डिफिकल्ट टू स्टॉप। समुद्र ने अपनी लहरों पर दौड़ते 3 जहाजों को बच्चों की गेंद की तरह उछाल दिया। ओशन ने उसके वेव्स पे 3 शिप्स थे, उसको एक बॉल के जैसे, किड की बॉल के जैसे थ्रो किया, उछाल दिया। एक वर्ली के समुंदर के किनारे पर आके गिरा। वन केम टू द वर्ली, वर्ली के ओशन शोर पर फेल, गिरा। दूसरा बांद्रा के कार्टर रोड पर, अंदर अनदर वन इन द बांद्रा कार्टर रोड के सामने, इन फ्रंट ऑफ द बांद्रा कार्टर रोड, औंधे मुंह, पूरा अपसाइड डाउन। और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया, थर्ड गेटवे ऑफ इंडिया में टूटी फूटी हालत, पूरा ब्रोकन कंडीशन में आकर गिरा। और आज भी सैलानियों का नजारा बना हुआ है। एंड नाउ इट इज जस्ट लाइक टूरिस्ट विल कम एंड सी दैट। इन जहाजों की मरम्मत आदि की गई। सो दे ट्राई टू रिपेयर दैट, मरम्मत, रिपेयर, लेकिन ये फिर चलने फिरने के काबिल ना हो सके। बट देन इट डिडंट मीन्स इट वाज नॉट वर्किंग अगेन। मिट्टी से मिट्टी मिले खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। इस पंक्तियों के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं? So with the medium of these lines, what the author is trying to say. इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक यह कहना चाहते हैं कि ईश्वर ने सभी जीवों को एक ही मिट्टी से रचा है। God has created all the creatures with the same soil. जीवन समाप्त हो जाने पर सभी जीव फिर उसी मिट्टी में मिल जाएंगे। Once the life will end, all the creatures will be mixed in the same soil. इसलिए यह जानना असंभव हो जाता है कि किसमें किसका कितना अंश मिला हुआ है। सो इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट दैट हाउ मच पार्ट ऑफ whom is there in this, means we all will be mixed in the soil. सबके बीच की सभी भिन्नताएं समाप्त हो जाएंगी, and all the differences will be end, so we'll mix in the same soil. Thank you for watching the video.